Hello everyone, welcome to today's video. I'm Dr. Rishabh Jain. So INICT just happened yesterday. So I decided to make a INICT recall question video based on the first and second prof subject. So as you guys know that INICT is heavily based on first and second prof, and even yesterday majority of the questions were from first and second prof. So today this is a video for first and second prof subjects, few of the questions, not all obviously. And I'll show you how all these questions were directly from first aid. So this is a first aid based recall video of first and second prof. And since we are on the topic of first aid, I have none other than the very special guest for you guys tonight, Dr. Aditya Gupta. Hello. So Aditya is one of the guys who popularized first aid on YouTube and for all PG aspirants. Actually, I'm not the one, so let's give the credit where it's due. It's Senap. All right, yeah. So we have multiple platinum, platinum or metallic standards, which keep on calling themselves as standards. But the actual diamond standard for preparation is the BTR videos, the MKT videos by Zenab. I think they're pretty gold, if I can say, just gold. Yeah. So the actual gold, if you understand what we mean. So the thing is that you need to have a concise and precise resource for revision, because अगर revise नहीं किया तो obviously exam में attempt नहीं मार पाओगे. And for that we always recommended first aid. Zenab also recommended first aid. But more importantly, Zenab taught first aid and taught those very very important topics for you, not from a USMLE point of view, but from a NEET PG point of view, from an INI point of view. And in this video, our purpose is to tell you how actually the questions are directly picked up from first aid, how it is a very good resource for you to concise and make it your primary resource for first and second prof subject. And then revise it multiple times so that you get the accuracy that the exam demands. Right. So coming to the first question, which of the following directly or indirectly inhibits glycogen phosphorylase? So in this diagram, we see that the glycogen phosphorylase enzyme is given here, and we see that protein phosphatase is directly inhibiting this glycogen phosphorylase enzyme. तो यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट एड में एक छोटा सा डायग्राम दिया हुआ है और उसमें दिखाया हुआ है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को इनहिबिट कौन कर रहा है, प्रोटीन फॉस्फेटेज कर रहा है. इनफैक्ट स्टिमुलेट कौन कर रहा है ये भी दिया हुआ है, कैम कर रहा है, प्रोटीन काइनेज कर रहा है, कैल्शियम कर रहा है, और यही अलग ऑप्शंस थे, द रॉन्ग ऑप्शंस बेसिकली. Yeah. So coming to the second question, a child presents with lethargy, poor feed, seizures. Mother complains of burnt sugar smell in urine. Do the following enzymes is deficient. So since we're talking about burnt sugar smell in urine, it is a giveaway that it is a maple syrup urine disease. And this burnt syrup smell in urine is again a presentation given in first aid of this maple syrup urine disease. So the examiner basically asking कि कौन सा एंजाइम है भाई जो डिफिशिएंट है, वो भी दे रखा है. Dawn chain alpha keto acid dehydrogenase. Now the thing, this is the reason why you need to revise. See, burnt sugar सुन के I'm pretty sure maybe even 50-60% of the aspirants or the 80% of the aspirants would have thought of maple syrup urine disease. But यार अगर आखिरी हफ्ते में रिवाइज नहीं किया होगा ना, तो वहाँ पे एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे, कीटो एसिड है या डिहाइड्रोजिनेज है या डिहाइड्रोलेज है या अल्फा कीटो एसिड है या बीटा कीटो एसिड है. तो जब तुमने आखिरी एक हफ्ते में अपने आंखों के सामने से you would have revised the things, then you would get that accuracy. And that's why first aid as this concise resource with just 700 pages becomes very easy to revise in the last 7 days. और कोई सोर्स 7 दिन में पूरा नहीं कर पाओगे. Only first aid, annotated first aid is a very good concise material for you. Basically, you cannot revise the entire 10,000 pages. That's what we have been trying to emphasize, and they are very good resources for your MBBS. Great, मतलब MBBS में पढ़ने के लिए अच्छे हैं, कंसेप्ट्स बनाने के लिए अच्छे हैं, बट जब आखिर में तुम्हें रिवाइज करना है उसके लिए या तो तुम खुद के नोट्स बनाने शुरू करो, कंसाइज नोट्स, या अगर तुम्हें थोड़ी कम मेहनत करनी है तो फर्स्ट एड को एनोटेट करके उसको अपना रिविजन रिसोर्स बना लो. अगर आपके पास अपने कोचिंग नोट्स खुद है, लेट से आपने थर्ड ईयर में कोई फोर्थ ईयर में कोई कोचिंग लगाई है, उसके अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स है, तो भाई वही पढ़ो. मतलब वो एक्चुअली हम नहीं कहेंगे उसमें फर्स्ट एड, वी वोंट कमेंट कि उसमें फर्स्ट एड पढ़ो, क्योंकि अगर वो तुम्हारे ऑलरेडी कंसाइज एंड प्रिसाइज नोट्स पढ़े हुए हैं जो खुद हैंड रिटन किए हुए हैं, amazing, great, revise them instead of using first aid. But if your study material was a pre-made notes and you want something to revise, be actually be able to revise, because हम first aid दिखाते हैं तुम्हें, first aid इतनी है 600-700 पन्ने हैं और तुम्हारे एक सब्जेक्ट के प्री-मेड नोट्स ना इतने मोटे होंगे, तो दिस तुम पूरा सोचो, तुम पूरा 60-70 क्वेश्चन इससे रिवाइज कर रहे हो, वो इससे एक सब्जेक्ट रिवाइज कर रहे हो. So that is the importance of first aid, that it helps in revision, multiple revision, and most importantly the last 7-day revision that we keep on talking about. We'll just quickly scan through few of the questions. So one of the questions was on Gaucher's disease. The image was directly picked up from first aid. And another another question was from cystic fibrosis. The enzyme was, the mutation was asked, and it is directly given as phenylalanine 508. So इसमें if you see ना cystic fibrosis में
एंजाइम डिफेक्ट दे रखा है, कॉमन डिलीशन इन फिनाइलिन 508। तो लोग डेल्टा F508 याद कर रहे होते हैं, उसी चीज का फायदा उठाया एग्जामिनर ने। वो F क्या है, वो फिनाइलएलेनिन है, डिलीशन ऑफ फिनाइलएलेनिन। तो फर्स्ट एड में वो डेल्टा F508 नहीं दिया, जबकि ऋषभ ने देखो खुद F508 लिखा है। यहाँ पे FPH ही दिया हुआ है, टू मेक श्योर कि तुम्हें याद रहे कि वो फिनाइलएलेनिन है। So another there was a question on Refsum disease की डिफेक्ट किस चीज में होता है। ये चीज ज़ैनब ने खुद अपनी MKT और अपने MER वीडियोस में पढ़ाई थी। आई थिंक द रीजन ज़ैनब इज that effective for PG preparation is because she herself is a topper, so she can put herself in the shoes of the examiner कि क्या पूछेंगे और क्या नहीं पूछेंगे। And exactly, she is also someone who used first aid during her preparation, so she knows कि जल्दी कैसे रिवाइज करना है। So if you look at her MKT, MER, BTR series, they are just 1 hour, and 1 hour में she teaches one topic A to Z. मतलब बहुत मुश्किल है ये, unless you have a concise material. चीजें बहुत सारा, आई एम अ पीडियाट्रिक oncologist, he is a radiologist. ओके, किसी एक टॉपिक के ऊपर 10 घंटे बोलना आसान होता है, उस टॉपिक को उतना बताना कि नीट पीजी में वही क्वेश्चन आए, INI में वही क्वेश्चन आए विद इन अ स्पैन ऑफ 5 minutes, या इन हर केस एंटायर टॉपिक विद इन अ स्पैन ऑफ 1 hour, दैट इज टफर। चीजें बढ़ाना आसान होता है, 1000 घंटे 2000 घंटे की वीडियोस बनाना आसान होता है, 200 घंटे की हम MER सीरीज आई थिंक इज नॉट जस्ट 50 या 60 hours, वो बनाना मुश्किल होता है। And it covers almost the entire PG preparation important topics, and that is not an easy job to do. Easy task. Just coming out to a few other questions, there was a question what is not a function of HMP shunt, and it is directly given in first aid that no ATP is synthesized or produced, hence ATP synthesis is not a function of HMP shunt. So which of the following cytokines is not related to TH1 cells? Again it's a table from first aid जिसमें दे रखा है कि TH1 cells क्या secrete करते हैं और TH2 यूज करता है इंटरल्यूकिन 4। तो the answer है वो TH1 cells is not related to interleukin 4. So again there was a question of match the following, the monoclonal antibody was given against its target, and this is again a direct table. एक टेबल है पूरी फर्स्ट एड में, उसमें around 20-25 monoclonal antibodies दे रखी है, and मोस्टली उनसे ही क्वेश्चन आ रहा है, and very easy to like आंखों के सामने से लास्ट डे रिवाइज करना, क्योंकि किसी को याद नहीं रहता है, बिकॉज़ यहाँ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज याद करना मुश्किल होता है ऑब्वियसली, बट आखिरी दिन एक बार रिवाइज किया होगा या आखिरी 5 दिन में रिवाइज किया होगा तो एग्जाम में तुम सही करके आ पाओगे। सो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन हैड कम कि एक टिक बॉर्न कोई डिजीज है, एंड उसका पेरिफेरल स्मीयर दे रखा था कि दिस ऑर्गेनिज्म वाज एनगल्फ्ड बाय न्यूट्रोफिल। तो उसने पूछा था कि आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म। सो ऑलमोस्ट सिमिलर इमेज एज कम्पेयर टू दिस इमेज आई हुई थी, एंड उसमें पूछा गया था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा। सो इसमें डायरेक्टली एक दे रखा है निमोनिक कि टिक बेस्ड उसमें रिक्टेशियल डिजीजेस जो होती हैं उसमें, तो मोनोसाइट एलरियोचस, मतलब मोनोसाइट जब एनगल्फ करता है तो E है, MEGA, तो ग्रैनुलोसाइट होगा तो एनाप्लाज्मोसिस होगा, मोनोसाइट होगा तो एलरियोचस होगा। तो उसमें क्योंकि क्वेश्चन में न्यूट्रोफिल मेंशन था तो इसका मतलब A होगा, G के बाद A आ रहा है तो एनाप्लाज्मोसिस होगा उसका आंसर। So again there was a question on parvovirus. Parvovirus is again a very hot topic of AIMS, पूछता ही है ना हर बार कि which of the following disease condition is not caused by parvovirus. I think हमारे पीड्स क्विज जो हुआ था which we gave in 8th semester, उसमें भी पारोवायरस ही पूछा था। I remember, ये क्वेश्चन आया था। तो पारोवायरस में अगेन दे रखा है कि चिल्ड्रन में स्लैप चीक एरिथेमा इन्फेक्शियोसम कराता है ये, एंड एडल्ट्स में प्रेग्नेंट वुमेन में हाइड्रोप्सिस कराता है और एप्लास्टिक क्राइसिस कराता है। तो क्या नहीं कराता, ये चौथा ऑप्शन था बेसिकली, जो ये 3 ऑप्शंस दिए हुए थे, चौथा ऑप्शन जो भी दिया हुआ था दैट वाज द आंसर। सो अगेन देयर वाज अ क्वेश्चन, एक डीएनए रेप्लिकेशन की साइकिल दे रखी थी और उसमें एचआईवी रेप्लिकेशन की सॉरी, एंड उसमें दे रखा था कि 1 to 5 लेबल कर रखे थे कि 5th स्टेप जो डीएनए इंटीग्रेशन था विच ऑफ द एंजाइम इनहिबिट करता है बायोकेमिकल। एक्चुअली में 1 2 3 4 5 पूरा का पूरा था, ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन 4 था, एंड 5th डीएनए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स वहाँ पे सारे के सारे दिए हुए हैं, डोल्टेग्राविर, राल्टेग्राविर, एल्वेटेग्राविर। आई थिंक ऑप्शंस में राल्टेग्राविर था फ्रॉम व्हाट वी हैव हर्ड। So coming on to the next question, we have just few more questions. कि alcoholic patient comes with a clinical picture of delirium tremens. On evaluation, is found to have elevated enzymes. Liver enzymes. Sorry. Which of the following drugs can you give? So this is first of all not a medicine question, not it's a pharma question. It's a pharma question. कि elevated liver enzyme, delirium tremens में you want to give a short-acting benzodiazepine, and since liver enzyme elevated है, you want a benzodiazepine which is not metabolized by liver. So again सिंपल कर दिया, डायरेक्टली फर्स्ट एड में निमोनिक के फॉर्म में दिया हुआ है। ये शॉर्ट एक्टिंग कौन से हैं? एटम वाले, अल्प्राजोलम, ट्राइजोलम, ऑक्साजोलम, मिडाजोलम, और कौन से नहीं कराते आउटसाइड, जो मेटाबोलाइज आउटसाइड लिवर, नॉट मेटाबोलाइज बाय लिवर, इज ऑक्साजोलम, टेमाजोलम एंड लोराजोलम। आउटसाइड द लिवर वो निमोनिक भी दिया हुआ है, तो तुम्हें याद रहेगा कि ऑक्साजोलम इज नॉट मेटाबोलाइज बाय लिवर।
तो आंसर इज ऑक्साज़ेपam. ऑक्साज़ेपam. सो अगेन एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था कि टेराटोजेनिक ड्रग्स और उनकी टेराटोजेनिसिटी Side से था. effect. तो लिथियम से एब्सिन अनोमली होती है, ये दिया हुआ है फर्स्ट एड में. क्लोराम्फेनिकोल से ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, ये भी फर्स्ट एड में दिया हुआ है. ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चंस को मिक्स एंड मैच करके किया था, बट ऑल दीज साइड इफेक्ट्स एंड दीज टेराटोजेनिक इफेक्ट्स वर गिवन इन फर्स्ट एड. एंड आई वांट टू एम्फसाइज वन थिंग. ऋषभ अपना लिथियम वाला दिखाना एक बार. ये ऋषभ की वो है, ऊपर करना हल्का सा. हाँ. तो ऋषभ ने यहाँ पे दिया हुआ है प्लाज्मा कंसंट्रेशन फॉर मेंटेनेंस एंड एक्यूट मेनिया. ये सेम क्वेश्चन आया है ना इस बार एग्जाम में. द रीजन ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया है एंड ऋषभ ने अपने टाइम पे लिखा है बिकॉज इट इज अ डायरेक्ट रिपीट फ्रॉम 2012. नाउ वी नो दैट यू हैव टू प्रैक्टिस 5 years क्वेश्चन ढंग से बिकॉज उसमें डेप्थ में जाना जरूरी होता है. बट ऊपर से पास्ट 10 years क्वेश्चन भी एक बार करके देख लो ताकि जो एक डायरेक्ट रिपीट आ जाए. जैसे एकदम लिटरली डायरेक्ट रिपीट है 2012 के एम्स के पेपर का. और हमने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने 2017 में एग्जाम दिया था, तो हमारे तो 5 साल में 2012 आ रहा था. एंड दैट्स व्हाई वी हैव रिटन दिस. तो 5 साल का तो डेफिनेटली करना ही है. बाकी 10 साल के जो हैं वो तुम लोग एटलीस्ट सिर्फ क्वेश्चन पता होने चाहिए, बट दैट्स अबाउट इट. एंड द पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज नॉट टू टेल यू कि फर्स्ट एड में सब कुछ दे रखा होगा. ऑब्वियसली देयर विल बी सम क्वेश्चंस जो तुम्हें ऊपर से ऐड करने पड़ेंगे. वो एनोटेट करना जरूरी है. बट एनोटेट कैसे करना? आई थिंक प्रीवियस टॉपिक एंड प्रीवियस क्वेश्चंस से ही करना है. और कुछ मतलब मान लो अगर आप कोई ऐप या कोई बुक पढ़ रहे हो, उसमें उसके नोट्स यूज कर रहे हो, तो जो प्रीवियस टॉपिक्स नहीं है उसको कट ऑफ कर दो. वहाँ पे बड़ा सा ऐसे क्रॉस लगा दो कि ये नहीं पढ़ना है. अगर इतनी बड़ी एक तुम्हारी नोटबुक है, तुम्हें लग रहा है इसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो ये टॉपिक नहीं दिया हुआ, उठा के ऐसे टक 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 करके उसको छोटा बनाओ. यू हैव सी इफ यू डोंट वांट टू यूज फर्स्ट ईयर, तुम्हें लगता है कि हमारी एडवाइस बकवास है, दैट्स परफेक्टली फाइन. बट यू वुड अग्री टू द फैक्ट एंड इफ यू आर गिवन INI-CET कि आखिरी 7 से 10 दिन में रिवाइज करना तो जरूरी है. कंसाइज तो करना ही है मटेरियल को. तो अपने नोट्स को कैसे कंसाइज करोगे? प्रीवियस ईयर टॉपिक्स में नहीं दिया, तुम्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, बेमतलब में एक्स्ट्रा दिया है, बहुत टफ है, उठा के कैंसिल कर दो. एंड बिकॉज yesterday जो पेपर है ना, इट वॉज नॉट वेरी टफ. इट वॉज ईजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर. एंड बट उसमें ट्रिक यही है कि 2 ऑप्शन फिर कन्फ्यूजिंग होते हैं, और वो कन्फ्यूजन तभी जाएगा व्हेन योर रिकॉल इज क्विक. अगर आपने लास्ट 7 days में पूरी MBBS का सिलेबस पर रिवाइज कर लिया होगा, सो यू नो कि अच्छा ये आंखों के सामने से कल गया था. यू विल हैव एन आइडेंटिक मेमोरी कि ठीक है ये गलत है, ये सही है. तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा. So that's the reason we emphasize. It's not that कल का पेपर अगर तुमने दिया होगा, you would realize कि कोई भी ऐसी क्वेश्चन नहीं था जो तुम्हें लगा अरे ये क्या बकवास क्वेश्चन पूछ लिया है. आई थिंक वाजेटस वाला अजीब सा क्वेश्चन था. फ्रैंकली स्पीकिंग यार, फर्स्ट का इनसाइड द यूट्रस जो सेकंड सेशन में पूछा गया था, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एम्स का ही, बट ये थोड़ा ज़्यादा पुराना है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो 2007 या 2006 का है, तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट पीपल टू नो अबाउट इट. हैविंग सेड दैट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वर फ्रॉम द फेमिलियर टॉपिक्स जो बार बार आ रहे हैं. And the trick is to get a good answer, good rank is not marking the easy questions wrong. वो accuracy तुम्हारी सही होनी चाहिए. And वो तभी होगी, as ऋषभ said, अगर आखिरी 7 दिन में आंखों के सामने से निकाला होगा. तो I think अगर आप this is a learning for NEET PG which is scheduled to held in March next year कि 3 principles हैं NEET PG को क्रैक करने के लिए: multiple revisions, concise material and previous year questions. And these 3 things are interrelated. So if you don't have a concise material, you won't be able to revise it multiple times. And how do you prepare a concise material? Using previous year questions. So I hope this video helps you guys a lot. If you want to review our first aids, we'll put it down in the comment section. And we'll make more videos on the first aid based recall as well. Yeah, we'll do that. And I hope that you got some information from this video. Good luck for your INI-CET exam and for your upcoming NEET PG. Bye bye. Thank you.